So hello, hey, hi. Our this chapter is magnetic resonance perfusion imaging. So blood flow and metabolism of human tissues have been studied with the traces in the nuclear medicine for many years. जो ब्लड फ्लो एंड मेटाबॉलिज्म वगैरह ह्यूमन टिश्यूज़ में काफ़ी टाइम से पढ़ा जा रहा है न्यूक्लियर मेडिसिन फॉर मेनी ईयर्स एंड विद द स्टडी पेट के साथ भी पॉजिटिव इमेजन टोमोग्राफी दीज टेक्निक्स लैक स्पेशल टेम्पोरल रिजोल्यूशन एज वेल एज स्पेसिफिसिटी। ये टेक्निक्स जो हैं इनमें कमी होती है स्पेशल टेम्पोरल रिजोल्यूशन की एंड स्पेसिफिसिटी की। सो रिसेंट रेडियोलॉजिक मेथड्स इंक्लूड सीटी परफ्यूजन एंड एमआर परफ्यूजन। MR perfusion can be performed with exogenous contrast agents like gadolinium or by endogenously without contrast agent के भी कर सकते हैं. So in this chapter we will study principal techniques and clinical applications of MR perfusion performed with the exogenous contrast agent and basic principles of arterial spin लेबलिंग ASL जिसको बोलते हैं आर्टीरियल स्पिल लेबलिंग टेक्निक आर आल्सो आउटलाइन। प्रिंसिपल क्या है हमारे परफ्यूजन का? सो perfusion refers to the passage of blood from an arterial supply to the venous drainage through the microcirculation। perfusion का क्या मतलब है? passage of blood from an arterial supply to the venous drainage through the microcirculation and perfusion is necessary for the nutritive supply of the tissues and for the clearance of products। एंड जो परफ्यूजन होता है क्या होता है? रेफर करता है पैसेज ऑफ द ब्लड फ्रॉम एन आर्टीरियल सप्लाई टू द वेनस ड्रेनेज थ्रू द माइक्रो सर्कुलेशन एंड परफ्यूजन नेसेसरी होता है न्यूट्रिटिव सप्लाई टू द टिश्यूज एंड क्लियरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म के लिए। एंड परफ्यूजन कैन बी अफेक्टेड बाय वेरियस डिसीजेस प्रोसेसेस अफेक्टिंग द पर्टिकुलर टिश्यू। सो हेंस measuring changes in the perfusion can help to diagnose the certain disease, monitoring and assessing the treatment response. So paramagnetic agents like gadolinium and gadolinium cause करता है shortening of both T1 and T2 of the tissues region in which they go. So decrease in the T1 relaxation and T1 weighted images results into the increased signals of the brightening. So and decreased T2 relaxation time or T2 star weighted images results into the signal drop or blackening. And as the gadolinium based कंट्रास्ट एजेंट्स पजेस करते हैं थ्रू द माइक्रोवेस्कुलेचर इन हाई कंसनट्रेशन देयर इज ए डिक्रीज इन द सिग्नल इन सराउंडिंग टिश्यूज। तो इसमें डिक्रीज होती है सिग्नल्स में इन द सराउंडिंग टिश्यूज में फ्रॉम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इंड्यूस्ड sorting of T2 star relaxation time. So this signal drops is assumed to be proportional to the perfusion and ये जो सिग्नल ड्रॉप है ये इसका जूम किया जाता है to be proportional to the perfusion. Considering the concentration of contrast agent contrast more the number of small vessels per voxel of the tissues more will be the signal drop. So thus the microvascularity and relative perfusion of that region or tissue can be determined by the MR perfusion। तो क्या होता है? गैडोलिनियम बेस्ड कंट्रास्ट एजेंट पास करते हैं थ्रू द माइक्रोवेस्कुलेचर इन द हाई कंसंट्रेशन देयर इज ए डिक्रीज इन द सिग्नल इन द सराउंडिंग टिश्यूज फ्रॉम द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इंड्यूस्ड शॉर्टनिंग ऑफ द T2 स्टार रिलैक्सेशन टाइम एंड सिग्नल ड्रॉप अज्यूम किया जाता है प्रोपोर्शनल टू द परफ्यूजन के। एंड कंसिडरिंग द concentration of the contrast agent constant more the number of small vessels per voxel of the tissue more will be the signal drop। मतलब क्या है? जितना ज़्यादा नंबर ऑफ स्मॉल वेसल्स होगा पर वॉक्सल ऑफ द टिश्यू उतना ही ज़्यादा सिग्नल ड्रॉप होगा। दस द माइक्रो और सिग्नल ड्रॉप
प्रोपोर्शनल किसके होता है, परफ्यूजन के होता है। दैट्स द मैक्रोवैस्कुलरिटी ऑफ रिलेटिव परफ्यूजन ऑफ द रीजन एंड टिश्यू कैन बी डिटरमाइंड बाय द मास परफ्यूजन। तो टेक्निक क्या है मास परफ्यूजन विद द एक्सोजीनस कंट्रास्ट एजेंट की। सो a dose of 0.01 millimole per kilogram 0.01 millimole per kilogram of gadolinium based contrast media is injected IV using power injector as the rate of 5 ml per second के हिसाब से दिया जाता है। एंड डोज क्या होती है 0.1 मिलीमोल पर किलोग्राम के हिसाब से गैडोलिनियम बेस्ड कंट्रास्ट मीडिया IV पावर इंजेक्टर के थ्रू 5 ml पर सेकेंड के हिसाब से दिया जाता है। फास्ट T2 स्टार वेटेड ecoplanar imaging sequences run to catch the first pass of the contrast through the microcirculation, and this sequence typically require करता है 15 to 20 slices covering the entire brain in 1 to 2 seconds। एंड ये सीक्वेंस क्या रिक्वायर करता है 15 to 20 स्लाइसेस कवर करती हैं एंटायर ब्रेन को इन द 1 and 2 सेकेंड। About 60 such runs are acquired before, during, and after dynamic injection of the contrast media. And from the raw data images, various color-coded maps. From the raw data images, various color-coded maps are constructed using software. Various color-coded maps जो होते हैं construct किए जाते हैं software के use करके, and there are relative maps used because of these are relative maps because of arterial input function is not typically measured। and ये जो relative maps होते हैं arterial input की वजह से input function not typically measure हो पाता है, and hence true quantitative volumes ml blood per ml tissue per time are not routinely calculated। so the maps include करते हैं RCVV relative cerebral blood volume, CBF central blood flow, and TTP time to peak, MTT mean transit time। so permeability or leakiness, what is permeability or leakiness? so areas of severe blood brain barrier breakdown are frequently seen in the necrotic tumor and irradiated tumor beds। एरिया जहाँ पे सीवियर ब्लड ब्रेन बैरियर ब्रेक होता है वो फ्रीक्वेंटली सीन होते हैं इन द नेक्रोटिक ट्यूमर एंड इरेडिएटेड ट्यूमर्स बेड्स में। इंक्रीज्ड परमेबिलिटी और लीकीनेस बिकॉज ऑफ in break in the blood brain barrier। जो increased permeability of the leakiness because of break in the blood brain barrier result करता है accumulation of gadolinium based contrast in the extravascular space में। एंड देखो क्या होगा अगर वहाँ पे लीकीनेस या ब्लड ब्रेन बैरियर ब्रेक होगा पर तो इसमें इंक्रीज हो जाएगी परमेबिलिटी एंड इसी वजह से वहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ गैडोलिनियम बेस्ड कंट्रास्ट का होगा इन द एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस पे। तो T1 इनहेंसिंग एफर्ट्स फॉर द एक्स्ट्रावेस्कुलर गैडोलिनियम में प्रीडोमिनेट टू काउंटरैक्ट। जो T1 इनहेंसिंग इफेक्ट है ऑफ द एक्स्ट्रावेस्कुलर गैडोलिनियम का में प्रीडोमिनेट टू काउंटरैक्ट द T2 सिग्नल लोअरिंग effects of the intravascular gadolinium resulting in the falsely low RCBV। The T1 weighted enhancing effects of the extravascular gadolinium may predominate कर सकता है to the counteract the T2 signal lowering effects of the intravascular gadolinium resulting in falsely low RCB। ऐसा रिजल्ट होगा कि लो relative cerebral blood flow है low falsely, and some measures to reduce permeability induced effects on RCBV include mathematical। तो क्या होता है T1 इनहेंसिंग इफेक्ट्स होते हैं एक्स्ट्रावेस्कुलर गैडोलिनियम के में प्रेडिमिनेट कर सकते हैं टू काउंटरैक्ट द T2 signal lowering effects and intravascular gadolinium resulting in falsely low RCBV and values some measures to reduce permeability induced effects on RCBV where include करते हैं mathematical
correction with calculation of permeability or K2 maps. Correction with the calculation of permeability or K2 maps, and use of dysprosium that has stronger T2 star effects but negligible T1 effects instead of gadolinium. ठीक है, तो क्या होता है परमेबिलिटी और लीकीनेस के केस में एरियाज जो होते हैं सीवियर ब्लड ब्रेन बैरियर के बैरियल ब्रेकडाउन होता है आर फ्रिक्वेंटली सीन इन द नेक्रोटिक ट्यूमर का एंड रेडिएटेड ट्यूमर बेड इंक्रीज्ड जहाँ पे परमेबिलिटी और लीकीनेस होती है बिकॉज ऑफ द ब्रेक इन द ब्लड ब्रेन बैरियर रिजल्ट करता है एक्यूमुलेशन ऑफ गैडोलिनियम बेस्ड कंट्रास्ट का इन द एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस. तो T1 इन्हेंसिंग इफेक्ट्स इन दिस एक्स्ट्रावेस्कुलर गैडोलिनियम में भी प्रीडोमिनेंट वहाँ पे T1 इन्हेंसिंग आएगा टू काउंटरएक्ट करने के लिए T2 सिग्नल लोअरिंग इफेक्ट्स ऑफ द इंट्रावेस्कुलर गैडोलिनियम रिजल्ट करेगा इन फाल्सली लो RCV वैल्यूज़. ऐसे फाल्सली मतलब लो RCV वैल्यूज़ आएंगी एंड सम मेजर्स to reduce permeability induced effects on RCV include mathematical correction with calculation of permeability or K2 maps and जो यूज ऑफ डिस्प्रोसियम है दैट हैज़ स्ट्रॉन्गर T2 स्टार इफेक्ट्स बट नेग्लिजिबल T1 इफेक्ट्स इंस्टीड ऑफ गैडोलिनियम. तो इस वजह से इसमें ये डिस्प्रोसियम का भी यूज करते हैं जिसके स्ट्रॉन्ग T2 स्टार इफेक्ट्स आते हैं बट नेग्लिजिबल T1 इफेक्ट्स आते हैं इंस्टीड ऑफ गैडोलिनियम की जगह पे. सो क्लिनिकल एप्लीकेशंस क्या होते हैं MR परफ्यूजन हैज़ बीन स्टडीड फॉर द क्लिनिकल यूटिलिटी इन वेरियस कंडीशंस लाइक स्ट्रोक ब्रेन ट्यूमर्स डिमेंशिया साइकेट्रिक इलनेस माइग्रेन हेडेक्स trauma, epilepsy, multiple sclerosis. Its role in stroke and tumor evaluation is discussed below, where it is commonly used in the clinical practice. क्या होता है क्लिनिकल एप्लीकेशन इसके MR परफ्यूजन के जो कि क्लिनिकली यूटिलिटी इन द वेरियस कंडीशन स्ट्रोक वगैरह में ब्रेन ट्यूमर डिमेंशिया साइकेट्रिक इलनेस माइग्रेन हेडेक ट्रॉमा एपिलेप्सी मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड स्ट्रोक एंड ट्यूमर इवेल्युएशन इज डिस्कस्ड किया जाता है वेयर इट इज कॉमनली यूज्ड इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस में. सो MR परफ्यूजन इन स्ट्रोक MR परफ्यूजन स्ट्रोक के केस में with emerging concept of stroke as brain attack and availability and acceptance of thrombolytic agents, it becomes very important to detect brain ischemia and salvageal tissue in the early window period of 3 to 6 hours. तो विद emerging concepts of stroke जो कि ब्रेन अटैक अवेलेबिलिटी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स का है इट बिकम्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू डिटेक्ट करने के लिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट क्या डिटेक्ट करने के लिए ब्रेन इश्यूमिया साल्वेजियल जिबल टिश्यू इन द अर्ली विंडो पीरियड ऑफ 3 to 6 hours. सो डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग जो होती है एंड PWI परफ्यूजन वेटेड इमेजिंग together are very effective in detection of early ischemia long before infarction and any abnormality seen on T2 weighted images. The mismatch between PW perfusion weighted and DW diffusion weighted represents potentially salvageable tissue यानी कि penumbra. So PW and DW mismatch may also indicate clinical outcome. PW एंड DW मिसमैच क्लिनिकल आउटकम को इंडिकेट करेंगे. सम मिसमैच हैज गुड क्लिनिकल आउटकम. लार्ज मिसमैच इज एसोसिएटेड विद द पुअर क्लिनिकल आउटकम एंड लार्ज वेजल ऑक्लूजन. सो हियर यू गाइस कैन सी दिस इज द परमेबिलिटी मैप है एंड इनहेंसिंग ट्यूमर इज सीन इन द पॉन्स में इनहेंसिंग ट्यूमर दिखाई दे रहा है. And here is the image of the CVV, CVF, MTT, TTP and CCBV and K2. So this is the permeability map की इमेजिंग है. CBV का मतलब होता है cerebral blood flow
और जब जो इसमें इमेज दिखाई जा रही है पर परफ्यूजन मैप्स हैं. CBV map on the lesions is hypovascular dark, but when K2 map is the corrected by the CBV. CCBV and calculated lesion is hypervascular green on CCBV map and red on K2 map. ग्रीन कैसे दिखता है CCBV मैप में, और रेड जो होता है वो K2 मैप की वजह से होता है. ओके, सो इसमें CBF का मतलब सेरेब्रल ब्लड फ्लो और CBV का मतलब सेरेब्रल ब्लड वेलोसिटी. एंड इसमें कैलकुलेटेड लीजन्स इन हाइपरवास्कुलर ग्रीन ऑन CCBV एंड मैप ऑन रेड ऑन K2 मैप. एंड रेडनेस ऑफ द लीजन ऑन K2 मैप इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड परमेबिलिटी की वजह से ड्यू टू द ब्रेक इन द ब्लड ब्रेन बैरियर. तो यहाँ पे इंक्रीज्ड परमेबिलिटी है किस वजह से, ब्रेक इन द ब्लड ब्रेन बैरियर की वजह से, ये जो जगह दिखाया गया है. एंड यहाँ पे एक्युमुलेशन ऑफ द गैडोलीनियम की वजह से है. ठीक है, सो इस तरीके से इमेजेस शो होती हैं इसकी. CCBV, K2, TTP, MTT, CBV and CBF. So here you guys can see रूटीन कंट्रास्ट एनहांसमेंट वर्सेस परफ्यूजन इमेजिंग में क्या डिफरेंस है. तो देख लेते हैं इसमें रूटीन जो क्या होता है और ऐसे क्या होता है. सीक्वेंस इसमें जो होता है रूटीन में T1 वेटेड इमेजिंग यूज होता है, जबकि परफ्यूजन इमेजिंग में T2 स्टार वेटेड इको प्लानर इमेजिंग सीक्वेंस होता है. सिग्नल चेंज इंक्रीज इन सिग्नल सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है रूटीन में, जबकि ड्रॉप इन सिग्नल इंटेंसिटी होता है. मैकेनिज्म गैडोलीनियम कॉज करता है रिडक्शन इन द T1 रिलैक्सेशन टाइम. इसमें गैडोलीनियम कॉज करता है रिडक्शन इन द T2 और T2 स्टार रिलैक्सेशन टाइम एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. परफ्यूजन इमेजिंग में ये क्या डिटेक्ट करता है, ब्रेक इन द ब्लड ब्रेन बैरियर लीडिंग टू द लीकेज ऑफ गैडोलीनियम. रूटीन में क्या होता है, ब्रेक इन द ब्लड ब्रेन बैरियर होता है जो कि लीकेज ऑफ गैडोलीनियम को लीड करता है. परफ्यूजन इमेजिंग में क्या होता है, गैडोलीनियम इन द माइक्रोवैस्कुलेचर कैपिलरीज में ये गिव्स देता है इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ स्मॉल वेसल्स, वेस्कुलरिटी एंड परफ्यूजन ऑफ द टिश्यूज. ठीक है, एंड पेनिम्ब्रा ऑफ द सल्वेजियल टिश्यूज. तो इसमें देख सकते हैं ऐसे होता है रिड्यूस्ड परफ्यूजन, फिर रिड्यूस्ड ADC. एंड दिस डिफरेंस जो होता है रिड्यूस्ड AC एंड परफ्यूजन के बीच का, इसको बोलते हैं पेनिम्ब्रा ऑफ सल्वेजियल टिश्यूज. ये बीच वाला ये ADC हो गया, पेनिम्ब्रा है रिड्यूस्ड परफ्यूजन. सो PWI यानी कि परफ्यूजन वेटेड इमेजिंग इज मोर सेंसिटिव दैन द DWI. डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग से ये ज़्यादा सेंसिटिव है डिटेक्ट करने के लिए क्या, इश्मीया इन अर्ली पीरियड आफ्टर द ऑनसेट ऑफ आर्टीरियल एक्लोजन. रिस्ट्रिक्टेड डिफ्यूजन रिड्यूस्ड ADC इज ऑलवेज अकम्पनाइड बाई टोटल और नियर टोटल परफ्यूजन डेफिसिट. तो ADC जो होता है ऑलवेज अकम्पनाइड होता है बाई द टोटल और नियर टोटल परफ्यूजन डेफिसिट. एंड देयर appears to be threshold in humans before tissue becomes subnormal on DWI despite low RCB. तो ये क्या होता है, ADC is always accompanied by total and near total perfusion deficit and there appears to be threshold in human perfusion tissues becomes subnormal on diffusion weighted imaging despite low relative cerebral blood flow. If in decrease in the perfusion is mild, ADC may be normal. अगर डिक्रीज होगा परफ्यूजन में तो माइल्ड ADC नॉर्मल आएगा. सो द प्रेजेंस ऑफ परफ्यूजन डिले elevated MTT and TTP is considered to be represent tissue at risk, whereas decreased ADC represents metabolic jeopardy. Okay, so MR perfusion in brain tumors. So MR perfusion can be useful in grading tumors like gliomas,
guiding biopsies and differentiating therapy induced necrosis from the recurrent residual tumor। तो एमआर परफ्यूजन यूजफुल किस चीज़ में होता है? ग्रेडिंग करने में ट्यूमर्स की, जैसे ग्लियोमास, गाइडिंग बायोप्सीज में, डिफरेंशिएटिंग थेरेपीज, इंड्यूस्ड नेक्रोसिस फ्रॉम द रिकरेंट रेजिडुअल ट्यूमर्स। एंड इट हैज़ बीन शोन दैट रिलेटिव cerebral velocity correlates with the both conventional angiographic assessment of the tumor vascularity and the histologic measurement of the tumor neovascularity। So RCBV can serve as a surrogate marker of tumor। RCB जो होता है सरोगेट मार्कर के तौर पर ट्यूमर का सर्व करता है, एंजियोजेनेसिस एंड मेलिग्नेंसी, एंड हेल्प करता है ग्रेडिंग ग्लियोमास को। एंड द RCB or relative cerebral blood flow helps to guide biopsy। and a tumor are with highest एक ट्यूमर जिसमें कि हाईएस्ट RCB वैल्यू येल्ड होती है, गुड बायोप्सी रिजल्ट्स एंड increases the diagnostic confidence। and RCB map can help differentiate between therapy induced necrosis, decreased RCB or complete loss of RCB, and recurrent residual tumor elevated RCB। अगर डिक्रीज RCB और कंप्लीट लॉस ऑफ RCB है तो उसमें नेक्रोसिस होगा। रिकरेंट रेजिडुअल ट्यूमर है तो फिर एलिवेटेड RCB होगा। NMR परफ्यूजन हेल्प करता है तो डिफ्रेंशिएटिंग में सॉलिटरी मेटास्टेसिस फ्रॉम ग्लियोमा बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन द मेजरमेंट ऑफ पेरीट्यूमोरल RCB। In metastasis, there is no histological evidence of tumor beyond the outer contrast enhancing margin। ओके तो मेटास्टेसिस में क्या होता है? कोई भी हिस्टोलॉजिकल एविडेंस ऑफ ट्यूमर बियॉन्ड आउटर कंट्रास्ट एनहेंसिंग मार्जिन नहीं होता है। सो पेरी ट्यूमरल RCB, पेरी ट्यूमरल जो होता है रिलेटिव सेरेब्रल ब्लड वेलोसिटी will not be elevated। on the other hand, the peritumoral regions in the high grade ग्लियोमा यूजुअली प्रेजेंट करता है वेरिएबल कॉम्बिनेशन ऑफ vasogenic edema and tumor cells infiltrating along the perivascular space and may show elevated peritumoral RCB। सो अदर हेड पे पेरीट्यूमरल जो रीजन्स होते हैं हाई ग्रेड ग्लियोमा के यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल कॉम्बिनेशन ऑफ वेसोजेनिक एडिमा को and tumor cells infiltrating along perivascular spaces and may also show elevated peritumoral RCB को। and some tumors like lymphoma and medulloblastoma, कुछ ट्यूमर्स जैसे कि लिम्फोमा एंड मेडुलोब्लास्टोमा में शो करते हैं रिड्यूस्ड RCB बिकॉज ऑफ देयर हाई सेलुलैरिटी एंड हाई न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो। सो अदर नियोप्लाज्म्स लाइक oligodendroglioma, meningioma, vascular metastasis from renal cell carcinoma and melanoma usually show करते हैं इंक्रीज। जो अदर न्यूप्लाज्म होते हैं उनमें इंक्रीज RCB होता है, जबकि लिम्फोमा एंड मेडुलोब्लास्टोमा में डिक्रीज RCB होता है RCBV। सो हाउएवर ए meningioma may show falsely high or falsely low RCBV। meningioma lacks the blood-brain barrier allowing the immediate leakage of the contrast without any substantial recovery of T2 star signal loss back to the baseline। सो MR परफ्यूजन में हेल्प डिफ्रेंशिएट ट्यूमर्स। MR परफ्यूजन में क्या होता है? हेल्प करती है डिफ्रेंशिएट करने ट्यूमर फ्रॉम द ट्यूमर मिमिकिंग लीजन्स लाइक इन्फेक्शन, इन्फॉक्शन, ट्यूमेफेक्टिव डीमाइलिनेशन लीजन। इसमें ट्यूमेफेक्टिव डीमाइलिनेटिंग लीजन्स हिस्टोलॉजिकली TDL consist of perivascular inflammatory infiltration and demyelination। हिस्टोलॉजिकली TDL जो होता है ट्यूमेफेक्टिव डीमाइलिनेटिंग लीजन्स होते हैं
कंसिस्ट करते हैं पेरीवेस्कुलर इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेशन डिमाइलिनेशन. So TDL can be difficult to differentiate from tumors not only radiologically but also histologically. Hypervascularity is rare in this lesion. So with the absence of the frank absence जो होता है frank का and the neoangiogenesis होता है, hence MR perfusion will not show elevated RCV in the TDL. तो MR perfusion शो नहीं करेगा RCV in the TDL में. ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हाई ग्रेड वर्सेस लो ग्रेड ग्लियोमा दिखाए गए हैं. तो ये जो है पोस्ट कंट्रास्ट T1 वेटेड एक्सियल इमेज ऑफ द ब्रेन शो करता है नॉन इनहेंसिंग ट्यूमर्स इन द राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में. नॉन इनहेंसिंग ट्यूमर है राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में. जो बी है वो CCBV मैप इन द सेम पेशेंट सोस ट्यूमर हाइपरवैस्कुलर रेड सजेस्टिव ऑफ हाई ग्रेड ट्यूमर. जो हाई ग्रेड ट्यूमर रेड जो आ रहा है वो शो कर रहा है. एंड सी जो है पोस्ट कंट्रास्ट T1 वेटेड एक्सियल इमेज ऑफ द ब्रेन इन द अनदर पेशेंट सोज सिस्टिक लीजन इन द पॉन्स विद द सम इन्हेंसमेंट शो कर रहा है. एंड जो नेक्स्ट डी है परफ्यूजन CCBV मैप ऑन द लीजन इज हाइपोवैस्कुलर सजेस्टिव ऑफ लो ग्रेड ट्यूमर्स का सजेस्टिव है. एंड इसमें आप देख सकते हैं ट्यूमर रिकरेंस वर्सेस नेक्रोसिस. सो ए जो है वो इल डिफाइंड ट्यूमर इन द लेफ्ट टेम्पोरल लोब आफ्टर द रेडिएशन थेरेपी. एंड बी क्या है, ये ट्यूमर है हाइपरवैस्कुलर रेड ऑन द CCBV मैप सजेस्टिव ऑफ रिकरेंट रेजिडुअल ट्यूमर को शो कर रहा है. एंड नेक्स्ट जो हम लोग देख सकते हैं restricted irradiated tumor in the left frontal lobes another patient. एंड पेशेंट जो हाइपोवैस्कुलर है सजेस्टिव ऑफ नेक्रोसिस शो कर रहा है. ये पे एरो से यहाँ पे जो एरो ये बना है ये शो कर रहा है, यानी यहाँ पे जो फ्रंटल में ये ट्यूमर है. ठीक है, सो अदर क्लिनिकल यूजेज इसके क्या होते हैं. MR परफ्यूजन इज ऑल्सो यूज टू असेस इस्चेमिक अंडर परफ्यूज्ड एरियाज इन कंडीशंस लाइक मोया डिसीज में एंड CNS वेस्कुलाइटिस में. मोया डिसीज और CNS वेस्कुलाइटिस में भी यूज होता है. एंड आर्टीरियल स्पिन लेबलिंग. What is the arterial spin leveling is a non-invasive method to assess tissue perfusion without exogenous contrast, injection or radiation. So in this image you guys can see मोया disease MTT maps शो कर रहे हैं. increased MTT in the left cerebral hemisphere. लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में इंक्रीज्ड है MTT. एंड MTT क्या होता है, मीन ट्रांजिट टाइम होता है. CBV मैप राइट शोज reduced CBV in the left cerebral hemisphere. This is suggestive of perfusion compromise reduction in the left cerebral hemisphere. ठीक है, सो ASL क्या होता है, आर्टीरियल स्पिन लेबलिंग जो होती है इज डन एज फॉलोज. कैसे किया जाता है, आर्टीरियल ब्लड फ्लोइंग टुवर्ड्स द रीजन ऑफ इंटरेस्ट इज टैग्ड. आर्टीरियल ब्लड फ्लोइंग जो होती है टुवर्ड्स द रीजन ऑफ इंटरेस्ट इज टैग्ड बाय द मैग्नेटिक इन्वर्जन पल्सेस. आर्टीरियल ब्लड फ्लोइंग जो होती है towards the region of interest is tagged by the magnetic inversion pulses. The phase of protons is changed after the delay to allow the tagged blood to enter the slice of interest. Images are acquired. This is the image is called tag image.
आर्टीरियल ब्लड जो फ्लो करता है टुवर्ड्स द रीजन ऑफ इंटरेस्ट उसको टैग किया जाता है बाय द मैग्नेटिक इन्वर्जन प्रोसेस। फिर इस फेज को प्रोटॉन चेंज होता है एंड आफ्टर डिले टू अलाउ द टैग्ड ब्लड टू एंटर द स्लाइस ऑफ द इंटरेस्ट इमेज एक्वायर्ड होती है एंड जो इमेज होती है उसको टैग्ड इमेज कहते हैं। सेकेंड इमेज ऑफ द सेम स्लाइस ऑफ द इंटरेस्ट इज अगेन एक्वायर्ड विदाउट इनफ्लो टैग्ड ब्लड, सो दिस इमेज इज कॉल्ड कंट्रास्ट इमेज। फिर इसको कहते हैं द टैग इमेज इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कंट्रोल इमेज। टैग इमेज का सब्सट्रैक्ट की जाती है कंट्रोल इमेज से एंड दिस रिजल्ट इनटू ए परफ्यूजन इमेज रिप्रेजेंटिंग टैग्ड ब्लड दैट फ्लोड इनटू द इमेज स्लाइस। ये रिजल्ट करता है इनटू ए परफ्यूजन इमेज में जो कि रिप्रेजेंट करता है टैग्ड ब्लड को दैट फ्लोड इनटू द इमेज स्लाइस में जो कि फ्लो करता है। एंड हियर इज द इमेज ऑफ द ASL arterial speed leveling diagram, blood vessel tagging plane and imaging plane slice of the interest। इस जगह पे अगर कुछ दिख रहा है तो यहाँ पे देखेंगे और उसको फिर उसकी टिश्यू की प्रॉपर इमेज ले लेंगे। ASL इन्वॉल्व करता है T1 वेटेड इमेजिंग एंड इट हैज़ इसमें ASL व T1 वेटेड इमेजिंग करते हैं। पुअर सिग्नल टू नॉइस रेशियो होता है। ASL हैज़ बेटर स्पेशल एंड टेम्पोरल रेजोल्यूशन देन पेट। ASL में बेटर स्पेशल एंड टेम्पोरल रेजोल्यूशन होता है पेट से। एंड पुअर SNR जो होता है सेंसिटिविटी टू abnormally लॉन्ग ट्रांजिट डिले of tagged protons have limited its application in clinical practice। तो पुअर जो SNR एंड सेंसिटिविटी होते हैं टू abnormally लॉन्ग ट्रांजिट डिले ऑफ टैग्ड प्रोटॉन्स जो होता है उसमें लिमिटेड होता है एंड इट्स एप्लीकेशन इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस। ओके, एंड नेक्स्ट चैप्टर इज MR स्पेक्ट्रोस्कोपी विल बी डन इन द नेक्स्ट लेक्चर।